And we have Dr. Ratna Tayak and HOD. And we have Ms. Chala Loa, Assistant Professor. Last but not the least, we have Mr. Evojit Deka, Assistant Professor from respected jury member, especially the external jury member, Dr. Prem Tabasa, who is the youth leader, and the General Secretary, Youth Mission Muslim Leader, Thane. And my colleagues, other guests, media persons, and dear participants who have come from various institutes from 8 districts of Arunachal Pradesh, and my dear NSS volunteers, Kerala. I first would like to thank the organizers for giving me this opportunity to become a jury member of a prestigious platform like this, Viksit Bharat Youth Parliament. India is advancing, of course. So it is a very good platform. You're beginning from the grassroots, from your block levels, from your districts, and you will be representing in the state level, then at the national level. It is a very good platform. So, young friends, I have few message for all of you. Youths are the backbone of the society. आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे, often you must have heard about it. But there's Dr. Prem Tabasa, youth leader jury member, sir, आपको बहुत धन्यवाद. आप हमें ऐसे ही प्रेरणा देता रहे. अभी भी सेलिब्रेशन ऑफिसर से NSS सेल DHMDE को सर आपको मंच पर Respected jury members, our NSS program officers, Sri Botem Mohanji and Kipaloni ma'am, NSS program officers from other institutions. So we are not underdeveloped. We are in very higher stage of developing nation today. मुझे गर्व है कि मैं उस देश की बेटी हूँ जो विश्व गुरु कहलाता है. मुझे गर्व है कि मैं उस सुंदर प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ 100 से भी ज्यादा जनजाति एक साथ रहते हैं. निशी, गालो आदि सभी के रीति रिवाजों की मान यहाँ, परिंदों का गान, पहाड़ों की शान, यही तो है बापुम पारे की जान. इसी सुनहरी भारत की कल्पना के साथ मैं तेजी नोसू आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. वन नेशन वन इलेक्शन, नया इलेक्शन, नए वादे, फिर नया इलेक्शन. कितना अच्छा होगा अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत सभी के इलेक्शन एक साथ एक ही बार हो जाए. Where democracy doesn't stumble, policies don't freeze, where elections aren't a chaotic storm but a well-formed beast. Today, ladies and gentlemen, I live in a developing nation where infrastructure and security are major concerns. But as soon as a model code of conduct is issued due to the frequent elections, everything comes down to zero. Progress is delayed, development is stalled, and thousands of crores are spent repeatedly. In 2019 Lok Sabha elections alone, 60,000 crores were spent. My friends, democracy is not only about elections but governance that serve people. Ladies and gentlemen, with one nation, one election, we set billions to invest in real progress. In sustainable development, it can power up to 10,000 villages with solar microgrids, further strengthening India's rank as fourth in global solar and wind energy. Also, since the passing of its bill on 17 December 2024, and it
And due to this, it is important to understand the importance. I am Mr. Tamu Lucy Tame from Don Bosco College. Do hereby stand in front of you all to deliver you my words on the topic One Nation, One Election, paving the way for the Viksit Bharat. As we are talking about the elections, let's dive into the brief history. India, and it gives me immense pleasure to talk and express my views on a topic that represents being one, that is one nation, one. A very good afternoon to everyone present here. Today I am standing in front of you all to give my opinion on the topic One Nation, One Election, paving the way. आज का प्रोग्राम ये हमारा डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर के रूप में हमारे कॉलेज को सिलेक्ट किया गया और इसमें मिस्टर बोते मोयोंग जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और उनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कुछ हमारे फैकल्टीज मेंबर्स जैसे ओम्बी रीरम हेवजीत डीका और कीपर ओनी, ये लोग चलक लवांग सब मिलकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो प्रिपरेशन तो 6-7 मार्च से ही चल रहा था, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ और अरुणाचल प्रदेश में 5 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर एक है, फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू है, जेएन कॉलेज पासीघाट है, एसएफएस कॉलेज आलो, गवर्नमेंट कॉलेज बॉम्बीला, ये 5 नोडल सेंटर्स बनाए गए विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 के लिए। तो इसके आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंतर्गत हमारे एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, हमारे लिए बीइंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रिंसिपल ये गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज के अंतर्गत 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है और 8 डिस्ट्रिक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर। और देखा जाए तो यूथ का पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा ये ईटानगर कैपिटल रीजन में आता है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशंस के सबसे ज़्यादा हमारे ईटानगर कैपिटल रीजन में है। और जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया इस नोडल सेंटर ने हमारे कॉलेज के, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के, वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स है लोअर सुबनसिरी, कई पेनियोर, फिर उसके बाद कुरुंग कुमे, कड़ा दादी, कामले, पाके केसांग, पापुमपारे और ये ईटानगर कैपिटल रीजन। तो सारे 8 डिस्ट्रिक्ट से हमने विद हेल्प ऑफ आवर प्रोग्राम ऑफिसर्स, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने बहुत मेहनत किया। सबों ने, हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स ने और एसएलओ के गाइडेंस में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन चला, लगभग 268 रजिस्ट्रेशन कराए इस पार्टिसिपेंट्स ने फ्रॉम ऑल 8 डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें से 150 का सिलेक्शन हुआ। 1 मिनट की वीडियो क्लिप को अपलोड करना था और उसमें किया। और फिर आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन होगा, जिनका सिलेक्शन हुआ स्क्रीनिंग के बाद वो चुने हुए जो क्वालिफाई हुए जिनका सिलेक्शन, उनको आज फिर से पैनल ऑफ जूरी जज करेगी उनके परफॉर्मेंस को। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे स्टूडेंट्स को, युवा को ये मौका दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि उनका क्या व्यूज़ है। ये वन नेशन वन इलेक्शन पेविंग द वे टुवर्ड्स विकसित भारत एट 2047, इसके बारे में युवा को सेंसिटाइज करने का और युवा को एक अवसर देने का कि वो क्या सोचते हैं, तो वो खुलकर इस पर बोल रहे हैं, अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। यही मिशन है और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जानने का। और उसके बाद विकसित भारत 2047 के टारगेट को अचीव तभी किया जाएगा जब जनतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से यूथ्स को सेंसिटाइज किया जाए, यूथ्स की बात सुनी जाए और वो अवसर मिल रहा है। इससे और भी फ़ायदा होगा कि हमारे स्टूडेंट्स का या जो पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स था 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। तो 18 साल से 25 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको वो एलिजिबल थे। तो खुलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे अपनी बात बोल रहे हैं। ये क्लियर हुआ 1 मिनट
वीडियो क्लिप जो अपलोड किया बच्चों ने, आज उनको 3 मिनट्स एवरी पार्टिसिपेंट को दिया जाएगा बोलने के लिए। आज उनकी पब्लिक स्पीकिंग में दक्षता कितनी है, वो कितनी अच्छे से बोल सकते हैं, ये हेल्प करेगा, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को भी डेवलप करेगा। और इसी बहाने बच्चे इंडिया के बारे में बहुत रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे। विकसित भारत मिशन हमारा क्या है 2047, इसको जानेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन में कैसे, अगर एक ही इलेक्शन होता है पूरे देश में, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, और भी जो भी लेयर्स के इलेक्शन है, तो खर्च बहुत कम आएगा और इसके बहुत ही मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। तो इससे भी यूथ्स को अवेयर कराना है, सेंसिटाइज करना है यूथ्स में क्या क्या। हाँ, हर चीज़ में थोड़ी मेरिट्स डिमेरिट्स होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेज है, लेकिन वो देखना होगा कि अधिक मेरिट्स है या अधिक डिमेरिट्स है, अधिक एडवांटेजेज है या अधिक डिसएडवांटेजेज है। अगर एडवांटेजेस अधिक है तो वो काम को हमें करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं में पॉजिटिविटी की बहुत आवश्यकता है, ऑप्टिमिज्म चाहिए, और उनमें सकारात्मक सोच इनकलकेट करने के लिए भी इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़रूरी है। और ये आयोजन अभी इनॉग्रल फंक्शन आज हो गया, बहुत ही सफल रहा, बहुत अच्छे से किया गया है। हमारे यहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स दैट्स अंडर दिस नोडल सेंटर ऑफ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर आए हुए हैं। प्रोग्राम ऑफिसर्स आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, पार्टिसिपेंट्स आए हैं। तो ये बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में आज इसका आयोजन किया जा रहा है। जूरीज में भी, पैनल ऑफ जूरीज में एक्सटर्नल्स बहुत ही जो डिजर्विंग है उन लोगों को बुलाया गया, और कुछ इंटरनल भी है पैनल में जो जूरीज हैं उसके। और बच्चे 3-3 मिनट बोलेंगे, फिर उनके परफॉर्मेंस को जूरी जज करेगी, और यहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे फिर स्टेट लेवल का आयोजन किया जाएगा। और स्टेट लेवल पे जो क्वालिफाई करेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, बेस्ट 3 speakers from Arunachal Pradesh will have opportunity to take part at national level finally to be held in Delhi. Thank you so much. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज हम लोग यहाँ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिलेक्शन है उसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि हमारे स्टेट के सारे यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अपने आप को विकसित भारत पोर्टल पे रजिस्टर्ड करें, माई भारत पोर्टल पे रजिस्टर्ड करके अपने व्यू पॉइंट को, जो वन नेशन वन इलेक्शन यही थीम है, और विकसित भारत कैसे हमारा राष्ट्र बने उसके बारे में वो अपने व्यू पॉइंट्स को रखें। तो मुझे यह खुशी हो रही है कि हमारा जो देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज है यह हमारे स्टेट का सबसे बड़ा नोडल डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इस नोडल डिस्ट्रिक्ट्स में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है। और एज ए स्टेट लियाजन ऑफिसर NSS मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज एंड हिज टीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बोतेम मोयोंग जी, हमारे अदर प्रोग्राम ऑफिसर्स कीपारोनी, डॉक्टर कीपारोनी, और हमारे जो टीम ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हैं, जो जूरी मेंबर्स हैं, उन सबका मैं आभारी हूं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर नॉर्थ ईस्ट के पूरे डेटा को अगर हम लेते हैं तो हमारा स्टेट माई भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन में 3rd नंबर पे है, लेकिन हमारे यहाँ टोटल NSS एलोकेशन 17,800 है। तो अगर उस नंबर को अगर हम लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश 2nd नंबर पे है। और हमारे बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, वो अपने व्यू पॉइंट को ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से अपने व्यू पॉइंट्स को रख रहे हैं। और जैसा कि आप पहले भी बताया गया है कि हमारे जो बेस्ट 3 परफॉर्मर्स होंगे उनका सिलेक्शन होगा और वो नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि स्टेट लेवल यूथ पार्लियामेंट प्रोपोज है हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और अगर हमारे ऑनरेबल स्पीकर सर अवेलेबल होंगे तो वो भी एक जूरी मेंबर होंगे उस सिलेक्शन प्रोसेस का, जहां से हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो हमारे पूरे स्टेट में 5 नोडल सेंटर्स हैं, उस 5 नोडल सेंटर्स से जो सिलेक्ट होकर के यहाँ आएंगे, वहाँ से हम 3
स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके नेशनल लेवल में अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेंगे। तो यह सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने व्यू पॉइंट्स को विकसित भारत के बारे में बताएं। वन नेशन वन इलेक्शन जो कि एक प्रोपोज्ड है, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अमेंडमेंट लाना चाह रही है। उसके लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट के चेयरमैनशिप श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया गया है। कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, लेकिन मास मूवमेंट के तरह मास पार्टिसिपेशन, खासकर युवा वर्ग को पार्टिसिपेट कराने के लिए ये गवर्नमेंट एक प्रयास कर रही है कि वो जनमानस को यह समझे कि उनका क्या व्यू पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसी के तहत यह विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट बहुत सक्सेसफुली हमारे पूरे स्टेट में कंडक्ट हुआ है, हो रहा है अभी, और उसी के तहत यहाँ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ताना चिरी, आई एम फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। आज NYKS के तरफ से ये विकसित भारत का जो एक प्रोग्राम चला नेशनल यूथ पार्लियामेंट, उस पर पार्टिसिपेट किया। ये माई भारत पोर्टल पे इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसके थ्रू से वहाँ से रजिस्टर करके 1 मिनट का वीडियो बना। उसके बाद आज फर्स्ट हमका डिस्ट्रिक्ट नोडल जो इवेंट हुआ, एंड इट वाज क्वाइट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। स्पेशली दिस इज अ कॉल टू ऑल द यंग पीपल आउट देयर। इट्स वेरी easy to sit in your couch and think about the government and lay down and slam all things, but it's take courage to come and be the voice. So this platform gives you the voice to speak on government policies and various things. So with this, I would like to encourage you, आने वाले समय में भी next year में please join and participate in this. Thank you. नमस्कार, मैं प्रिया पो, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर हिंदी विभाग से। आप सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहती हूँ, आज हमारी कॉलेज में आयोजित किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन की टीम के अंतर्गत ऐसे बहुत से जिलाओं से बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स आए और उन सभी ने अपना अपना प्रदर्शन दिखाया। और मैंने भी आज वही चीज़ अपनी जो मेरी सोच विचार है जो इस विषय को लेकर जो सबसे ज़्यादा आज हमारी जो भारत देश में जो चर्चित है, इस विषय को लेकर मैंने भी अपने विचार को प्रस्तुत किया। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के अगर आप लोगों को अवसर मिले तो आप लोग हमेशा आप हिस्सा लीजिए। और ये एक ऐसा स्टेज है, ऐसा मौका है जहाँ पे आप अपने विचारों को आप दूसरों के सामने आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो।